Hello students, welcome back to our YouTube channel Zoologic Mind. So we started with the chapter endocrine system, and in part 1 of this unit we discussed about the human endocrine system, the difference in exo and endocrine glands, the types of hormones and the hormones hypothalamus and pituitary. And in today part 2 we are going to discuss about a thyroid gland, its location, structure, the hormones secreted by it, the synthesis of thyroxine, the functions of thyroxine, and the disorders caused by the hyper and hyposecretion of the thyroxine gland. So let's begin with the topic. So thyroid gland. Thyroid gland is a highly vascular butterfly shaped structure. Highly vascular का मतलब क्या है कि there is a good supply of blood vessels and it is butterfly shaped that is present on the anterior side of the neck. Anterior side of neck means the upper portion of neck in front of the trachea. Okay, so this is your trachea. This blue colored strips is showing trachea, and this is the pink portion represents your thyroid gland. It is a butterfly like structure. Okay, so the the thyroid gland weighs about 25 ग्राम 25 ग्राम का होता है लगभग. इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है. ठीक है, और हर एक लोब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होता है. ठीक है, अब इन दोनों लोब्स को, लेफ्ट एंड राइट लोब को जो ज्वाइन करता है, जो मीडियन मास इनको जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं हम isthmus. Okay, so this is your right lobe, this is your left lobe, and this portion is called as your isthmus. Okay, the internal structure of the gland consists of hollow spherical follicles. Okay, so it is composed of hollow spherical follicles that is lined by the cuboidal epithelial cells, which is also called as your follicular cells. Now these follicular cells secrete your major hormone, which is known as the thyroid hormone or thyroxine, in the form of glycoprotein called as the thyroglobulin. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थायरॉक्सिन हार्मोन डायरेक्टली थायरॉक्सिन के फॉर्म में ही सिक्रेट होता है, नहीं, वो पहले थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में सिक्रेट होता है, फिर वो MIT बनता है, उससे DIT बनता है, फिर T3 बनता है, T4 बनता है. तो इस तरह से इनका सिंथेसिस होता है, जो हम अभी सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन या फिर थायरॉइड हार्मोन में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी आपको बस इतना समझ के रखना है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और होलो फॉलिकल्स होते हैं. उन फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और वो फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं आपका थायरॉइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन. ठीक है, इन एडिशन टू द फॉलिकुलर सेल्स के अलावा थायरॉइड ग्लैंड में एक और सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल, और ये पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन. ये हाइपोकैल्सिमिक नेचर का होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है. ठीक है, the parafollicular cells are present within the follicular epithelium and do not form a separate mass. ठीक है, तो ये कहीं ऐसे अलग से मास में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये बीच बीच में फॉलिकुलर एपिथेलियम के बीच बीच में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो ये अगर थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन है. ठीक है, सो दिस इज योर कोलॉइड पार्ट. ओके, दिस इज योर कोलॉइड पार्ट and the pink cells here representing your follicular cells. So this is follicular cell, this is follicular cell, and these blue cells are parafollicular cells. They are also called as C cells. Okay, and there are a lot of blood capillaries, okay, that are in between these cells. Okay, so because they are highly vascular तो blood vessels तो होंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन दो तरह के होते हैं. ठीक है, थायराइड हार्मोन कंसिस्ट ऑफ टू आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स. कौन कौन से, थायरोक्सिन जिसको हम T4 भी बोलते हैं, एंड ट्राईआइडोथायरोनिन. ठीक है, द थायरोक्सिन इज ऑल्सो नोन एज T4 एज इट कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयोडीन. ठीक है, तो
थायरोक्सिन को T4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें 4 एटम होते हैं आयोडीन के, वहीं जो ट्राई आइडोथायरोमीन होता है उसमें सिर्फ 3 एटम्स होते हैं आयोडीन के, ठीक है, 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। जो T4 है हम इसको टेट्रा आइडोथायरोमीन भी बोलते हैं, या थायरोक्सिन बोल देते हैं, या T4 बोल देते हैं, ठीक है। द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन। तो फॉलिकुलर सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, थायरोक्सिन। T3 T4 दोनों सिक्रेट करते हैं, लेकिन मेजरली T4 सिक्रेट करते हैं, ठीक है, और फिर वो T4 को हम T3 में कन्वर्ट कर देते हैं। बोथ थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन आर कंपोज्ड ऑफ 2 टायरोसिन अमीनो एसिड एंड लिंक्ड टुगेदर विद द आयोडीन एटम्स, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, अभी जब मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं जिनको हम डाईआइडो टायरोसिन बोलते हैं, ठीक है, या फिर मोनोआइडो टायरोसिन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो डाईआइडो टायरोसिन होता है वहाँ पे ऐसे 2 आयोडीन के स्ट्रक्चर्स एक आपके टायरोसिन के मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, ठीक है, और मोनोआइडो टायरोसिन में एक टायरोसिन से जो है एक आयोडीन जुड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर 2 DIT जुड़ रहा है, ठीक है, तो आपका T4 बन जाता है, अगर एक DIT एक MIT जुड़ रहा है तो T3 बन जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मान लो कि T3 बन रहा है सपोज, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक ये टायरोसिन हो जाएगा, एक ये टायरोसिन हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन हो गए ना। तो वही बात यहाँ पे बता रखा है कि thyroxine and triiodothyronine are composed of 2 tyrosine amino acid linked together with iodine atoms, ठीक है। The number of iodine atom differs सॉरी डिफर्स बिटवीन द 2 हॉर्मोन्स, ठीक है। तो T3 होगा तो 3, T4 होंगे तो 4 आयोडीन एटम्स। द प्राइमरी फंक्शन और रोल ऑफ थायराइड हार्मोन इज टू इंक्रीज द BMR, ठीक है, तो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, साथ ही साथ आपके बॉडी में हीमियोस्टेसिस का भी काम करती है वाया ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ओके। Now, beside it is also necessary for tissue growth and development, especially in the case of skeletal muscles and nerve tissues, ठीक है। तो आपकी नर्व टिश्यूज एंड स्केलेटल मसल्स के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इनका काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है कि आपके ब्लड में कितना थायराइड हार्मोन होगा, कितना नहीं होगा, उसकी रिलीज को, सिक्रेशन को पूरी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ दीज ऑफ द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन वर्क बाय अ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाई थी अगर आपको याद हो, कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा था, थायराइड रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा था हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर वो आगे चल के आपके पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पार्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है, TSH। अब ये TSH क्या करते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड को फर्दर जाके स्टिमुलेट करते हैं, फिर थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हो जाता है आपका थायरोक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट, अब अगर आपके ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है तो क्या होगा, पिट्यूटरी को चला जाएगा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, यहाँ से TSH रिलीज होना बंद हो जाएंगे। TSH रिलीज नहीं होंगे तो थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है इनका रिलीज कंट्रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक है। आप देखते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, तो BMR को तो रेगुलेट करते ही करते हैं, ठीक है। मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट,
दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एंड देयरफॉर प्रमोट ग्रोथ एंड बॉडी टिश्यूज। तो प्रोटीन ही हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हमारी सेल्स की, तो इनडायरेक्टली ग्रोथ को और टिश्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दे रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। तो मेंटल डेवलपमेंट में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल है। एज दे इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन, thus they maintain the body temperature। hemostasis में भी इनका मेजर रोल है। they help in metamorphosis in the tadpole, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा, टैडपोल को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा तो टैडपोल हमेशा टैडपोल ही रह जाएगा, वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा थायरॉक्सिन के ही इन्फ्लुएंस में जो है मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना हो सकता है, अदरवाइज कभी भी फ्रॉग एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। दे इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन। ओके, नाउ द सिंथेसिस ऑफ द थायरॉक्सिन, ठीक है। तो हमें अब पढ़ना है कि आपका जो T3 एंड T4 है वो एक्चुअली कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि T3 T4 किसमें, फॉलिकुलर सेल्स में सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है आपका, ये सब पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉलिकुलर सेल्स को, ठीक है। ये जो पर्पलिश वाला पार्ट है ये आपकी एक किसी ब्लड कैपिलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड ये जो येलो वाला पार्ट है ये कोलॉइड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, ये सिंथेसाइज करते हैं टीजीबी थायरोग्लोबुलिन को, ठीक है। और इसको जो फॉलिकल के ल्यूमेन है वहाँ पे भेज देते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से पास में जो कैपिलरी जा रही होती है फॉलिकुलर सेल्स के नज़दीक में, उसमें आयोडाइड आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि उन आयोडाइड आयंस को फॉलिकुलर के अंदर अपटेक कर लेते हैं ना। सो दिस इज द अपटेक ऑफ आयोडाइड आयन। फिर ये आयोडाइड आयन को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये दोनों पार्ट जो है कॉलॉइड के ल्यूमेन में, यानी फॉलिकुलर सेल के कॉलॉइड वाले पार्ट में ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आ गया आपका यहाँ पे टीजीबी आ गया, थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो टीजीबी होता है इस पे जगह जगह पे टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे टायरोसिन प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पे जो आयोडीन है वो जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पे दो हो जाते हैं, कहीं पे एक हो जाता है। तो जहाँ पे दो होंगे वो बन जाएगा आपका DIT-T2 यानी कि डाई आयोडो टायरोसिन, और जहाँ पे एक ही आयोडीन जुड़ा होगा वो होगा MIT मोनोआइडो टायरोसिन, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आपके दो DIT जुड़ गए तो बन जाएगा आपका T4 यानी कि चार आयोडीन के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे और दो टायरोसिन होगा। एक T4 में चार आयोडीन को मॉलिक्यूल होंगे और दो टायरोसिन होंगे। और वहीं जो T3 बनेगा उसमें एक DIT होगा और एक MIT होगा। तो इसमें तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे और दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इनमें इनकी हो जाती है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये एक ऐसे वेसिकल में पैक हो जाते हैं जिनको बोलते हैं हम लाइसोसोम, ठीक है। इसमें T3 T4 पैक हो जाते हैं। फिर ये आपका जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, उनके एकदम यहाँ एंड पे आ जाते हैं जहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। फिर यहाँ पे इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है और ये ऐसे कैपिलरी में T3 T4 एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर ये हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सिंथेसिस ऑफ T3 T4 और थायराइड हार्मोन, ओके। तो यहाँ पे सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज हो रहा है, फॉलिकल के ल्यूमेन में पहुंच गया, वहीं आसपास की कैपिलरी से आयोडाइड आयन को अपटेक किया और उसको कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में,
ठीक है, अब आयोडीन और जो टीजीबी था वो पहुंच गया ल्यूमेन में। ठीक है, फिर जो टायरोसिन का मॉलिक्यूल था वहां से जुड़ गया आयोडीन और बना दिया DIT MIT। ठीक है, अब जो आयोडोनेटेड टायरोसिन है वो आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं T3 एंड T4। अब TGB कोलोइड इज एंडोसाइटोस्ड। ठीक है, तो क्या फिर इनका एंडोसाइटोसिस हो जाता है, वेसिकल बन जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में इनकी पैकिंग हो जाती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि लाइसोसोम टूट जाता है और ये जो आपकी ब्लड स्ट्रीम होती है उनमें सारा T3 T4 जो है डिफ्यूज हो जाता है, फिर आपके अलग अलग टिश्यूज तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका दूसरा हार्मोन था कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन को पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं जिनको हम सी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हाइपोकैल्सेमिक होता है। ठीक है, तो ये जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होगा तो उसको घटाने के लिए कैल्सीटोनिन सिक्रीट होता है। ठीक है, फिर वो आपके ब्लड में कैल्शियम को कम कर देती है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपकी किडनी, बोन एंड GIT ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब किडनी में इट इनहिबिट्स द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। ठीक है, तो इनका कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन रोक देगी तो वासा रेक्टा में कैल्शियम नहीं जाएगा। तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू सारा कैल्शियम आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोन्स पे प्रेजेंट होता है, promotes the deposition of calcium ion into the bones and inhibits the osteoclast and stimulates the osteoblast। और तीसरा है आपका GIT ट्रैक में, इट यहाँ पे इट इनहिबिट्स द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, और ब्लड में तो कैल्शियम के लेवल को कम करती ही करती है। ठीक है, तो ये आपका कैल्सीटोनिन है। ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे कि कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, कैसे नेचर के होते हैं, हाइपोकैल्सेमिक, और इसके रिसेप्टर्स आपके किडनी, बोन एंड GIT ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसऑर्डर्स। तो पहला डिसऑर्डर है आपका ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो ये क्या, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से ये डिजीज होती है। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका TSH था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन के सिमिलर, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके सिमिलर एक एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर्वसनेस, एलिवेटेड मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेट लॉस एंड स्वेटिंग होगा। ठीक है, और इसमें ये ऐसे ऑप्थैल्मिक आइज हो जाती हैं, आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरा है आपका सिंपल गोइटर। Simple goiter is a condition caused by the hyposecretion of the thyroid hormone। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन कम सेक्रेट होता है, इस वजह से ये गोइटर की कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाती है उसकी। ठीक है, द गोइटर इज कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू। एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसी की वजह से एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इट इज़ कॉज ड्यू टू द परसिस्टेंट आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है गोइटर, या फिर T3 एंड T4 की कमी की वजह से हो सकता है। अब तीसरा डिसऑर्डर है क्रेटिनिज्म। ये मेनली बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं जो ये मिक्सडीमा की कंडीशन है ये एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ द क्रेटिनिज्म इज कॉज ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायराइड। ये भी हाइपोसिक्रेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को हो जाती है मेंटल रिटार्डनेस, डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ज़्यादा सीवियर बच्चों में देखने को मिलती है देन इन एडल्ट्स। ठीक है, और ये जेनेटिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो लैक ऑफ आयोडीन और लैक ऑफ थायरोक्सिन
या फिर थायराइड हार्मोन की वजह से ही होता है। मिक्स्ड एडीमा जो है ये ज़्यादातर ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ठीक है, ये कंडीशन एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे बीएमआर कम हो जाता है, वेट गेन हो जाता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा थिकनिंग एंड स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली इन योर लोअर लेग्स। ठीक है, स्वेलिंग अराउंड योर फेस, लिप्स, आईलिड्स एंड टंग। Okay, so this is mixed edema and the last is your Hashimoto syndrome जिसको हम chronic lymphocytic thyroiditis भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें थायरोग्लोबुलिन के जैसा एक एंटीबॉडी बन जाता है और वो एंटीबॉडी फिर थायराइड ग्लैंड को अटैक कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं कर पाता अच्छे से। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी नहीं रिलीज होता, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें आपकी ड्राई एंड थिन हेयर हो जाती हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जॉइंट और मसल में पेन एंड हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।